So basically our topics for today are insert an image to a document from various sources and many other. First of all we are going to discuss that आप अपने document में कौन कौन से different sources से image को insert कर सकते हैं. This is our OpenOffice Writer. Now if we want to insert the image, we have to click on the insert menu. And then we have to click on the option picture. This is the option picture. Click on this arrow and you will see here two options, from file and scan. First option is from file. Click on the from file option. After clicking on the from file option, you have to check the place where your picture is there in your computer. Here we have a picture on the desktop, so we are going to insert that picture. Click on the picture and click on open option. Now you can see this picture has appeared onto the document and these green color are the picture handles. If you want to resize the picture, you can make it big or small as per your requirement. Like this. So this is known as resizing the picture. Now you can see as soon as the picture has appeared, this toolbar has also appeared. So this is the modification toolbar. It has different options. If it is not visible to you, then you can go to the view menu and then go to the toolbar option, and from here you have to select the picture. So these are the different effects. Now let us understand how these effects work. So first is from file. From file option says that if we want to replace any other picture in place of this picture, आपने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करी, इस पिक्चर के ऊपर आप कोई और पिक्चर लाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे उस केस में, यू विल गो टू दिस ऑप्शन फ्रॉम फाइल और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी कोई पिक्चर है आप उसे सेलेक्ट करेंगे. लाइक सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस पिक्चर एंड आई क्लिक ऑन ओपन. तो इस केस में आपका क्या होगा, जो आपने पहले पिक्चर इंसर्ट करी थी उसके प्लेस पे आपकी सेकंड पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी. पहले वाली पिक्चर आपकी रिमूव हो जाएगी और सेकंड वाली पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी. तो लेट अस डू इट अनडू. आफ्टर दैट द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ पिक्चर. लाइक द फर्स्ट इज इन्वर्ट. जब आप इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पिक्चर का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक है. आई एम डूइंग अनडू आफ्टर एवरी इफेक्ट, ताकि आपको डिफरेंट इफेक्ट्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको पता लगता रहे. नेक्स्ट इज स्मूथ. इसके जो साइड के एजेस हैं दे बिकम स्मूथ. नेक्स्ट इज शार्पन. साइड के एजेस आपके शार्पन हो जाएंगे इसके. देन नेक्स्ट इज रिमूव नॉइज. कहीं पे भी अगर सिंगल पिक्सल है पिक्चर में तो वो आपका रिमूव हो जाता है रिमूव नॉइज से. देन वी हैव इज सोलराइजेशन. सोलराइजेशन में यहाँ पे आप कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू देते हैं और अगर आप इन्वर्ट करना चाहते हो सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस check box of invert, otherwise not, and if you click on OK you will see the changes in the picture. This is the basically solarization. Next we have is aging. Remember that your picture should be selected in case if you want the effects to be appeared on this one. Click on aging. Again it has some value for the aging degree. You can see the preview here also. आप कम करेंगे उसके अकॉर्डिंग इट्स इफेक्ट विल चेंज, आप ज़्यादा करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका जो इफेक्ट है दैट विल चेंज. क्लिक ऑन ओके. नाउ यू कैन सी दिस इफेक्ट. देन वी हैव इज पोस्चराइज. पोस्चर की तरह अगर आपको शो करना है तो आप इसमें पोस्चराइज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं. वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो. दिस इज द पोस्चराइज ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव इज पॉप आर्ट. So this is the pop art option. Next we have is charcoal sketch. ये इस तरह से charcoal sketch की फॉर्म में आपको दिखाई देगा. Then next we have is relief. This is the relief effect. आप कहीं से भी इसके effect को changes कर सकते हैं like this. So this is a relief effect.
And the last we have is mosaic. You can increase or decrease the value of the pixel for the width and the height. जितनी ज़्यादा आप वैल्यू करेंगे उतनी आपकी पिक्चर ज़्यादा ब्लर होती जाएगी. अंडरस्टूड दिस थिंग? तो मोज़ैक इज बेसिकली फॉर मेकिंग द पिक्चर ब्लर. इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, हेयर इट इज़ डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो आपने पिक्चर इंसर्ट की जो उसका कलर है ऑटोमेटिकली वही कलर आपको दिखाई देगा. बट इफ़ यू वांट टू मेक इट ग्रे स्केल तो ग्रे स्केल में आपका इस तरह से हो जाता है. ये आपका ब्लैक एंड वाइट हो गया. एंड दिस इज़ योर वाटरमार्क जो हम पेज के बैक साइड पे लगाते हैं बैकग्राउंड में. ओके, लेट अस मेक इट डिफ़ॉल्ट अगेन. इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज ये कलर्स हैं आपके. इसके अंदर आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड दिस इज योर गामा. तो इसकी आप वैल्यू जितनी चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इस पर इफेक्ट लगता जाएगा. जैसे यहाँ पे अगर मैंने रेड कलर की वैल्यू की परसेंटेज को चेंज किया तो यहाँ आप देख रहे हो ये थोड़ा सा रेडिश कलर में होता जा रहा है. अगर आप ग्रीन में करोगे तो इसका जो ग्रीन इफेक्ट है वो ज़्यादा आपको दिखाई देगा. अंडरस्टूड दिस थिंग? तो दिस वे यू कैन मेक द चेंजेस. तो अभी हमने इसको नॉर्मल कंट्रोल जी किया और इसको अंडू कर दिया सारे इफेक्ट को. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे आपके ट्रांसपेरेंसी, कितना आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं. जितना आप इसको करना चाहते हो आप उसकी इतनी वैल्यू बढ़ा सकते हो. आप देख रहे हो कि वैल्यू जितनी इंक्रीज हो रही है उतनी इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. ठीक है. लाइक दिस यू कैन मेक द चेंजेस. देन दिस इज फ्लिप हॉरिजॉन्टली. फ्लिप हॉरिजॉन्टली पे आप क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेयरी मिल्क लिखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट साइड आपकी राइट हो जाएगी और राइट साइड आपकी लेफ्ट हो जाएगी. तो ये डी जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा. कैसे? ये हमारी पिक्चर सेलेक्टेड है, आपने किया फ्लिप हॉरिजॉन्टली तो आपने देखा कि ये राइट साइड पे आ गया. लेटर्स हमें थोड़े से, पहले हम कैसे रीड कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट, अब हमें राइट टू लेफ्ट दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. कंट्रोल जी किया हमने, अंडू किया. अगेन हम इसमें देखते हैं कि फ्लिप वर्टिकली कैसे किया जाता है. नॉर्मल हमने कर दिया इसको, अब हमने किया फ्लिप वर्टिकली. तो फ्लिप वर्टिकली में आपका क्या होगा, अपसाइड डाउन, ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली साइड ऊपर. तो ये आपका क्या हो गया, फ्लिप वर्टिकली. अंडरस्टूड? इस तरह से हम किसी भी पिक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पिक्चर. मॉडिफिकेशन के लिए आप यहाँ से कर सकते हो. अंडरस्टूड दिस थिंग? फिर इसमें एक चीज़ आती है कि अगर आपको पिक्चर को क्रॉप करना है तो क्रॉप आप कैसे करोगे. तो वो करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है अपने पिक्चर पे. जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे वन कंटेक्स्ट मेन्यू विल ओपन एंड इन दिस कंटेक्स्ट मेन्यू यू विल सी द ऑप्शन ऑफ पिक्चर. क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ पिक्चर एंड यू विल सी द डायलॉग बॉक्स हेयर. जो आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा इसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टैब्स हैं बेसिकली, लाइक टाइप है, ऑप्शंस है, रैप है, हाइपरलिंक है एंड एवरी टैब हैज़ डिफरेंट ऑप्शंस टू परफॉर्म. बेसिकली अब हमें क्या करना है, क्रॉप करना है. तो हम क्रॉप टैब पे गए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, वन इज़ कीप स्केल एंड वन इज़ कीप इमेज साइज़. इसके बाद आपको 4 वैल्यूज़ हैं आपके पास, लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम. इनकी वैल्यू को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो राइट साइड में आप इसका प्रीव्यू देखो कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ आ रहा है. तो इस बॉक्स के अंदर जितना भी पार्ट है पिक्चर का वो स्क्रीन पे विजिबल होगा, लेकिन जो स्क्रीन से बाहर है वो आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दैट इज़ क्रॉप हो जाएगा. देखा आपने, क्रॉप हो गया और आपका पिक्चर का साइज़ भी शॉर्ट हो गया. अब दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो है आपका कीप इमेज साइज़. अगेन आप क्या करेंगे, राइट, हमने इसको पहले अंडू किया, देन आप अगेन राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद अगेन आपको पिक्चर ऑप्शन पे जाना है, देन क्रॉप. अब हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया कीप इमेज साइज़, लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम. 4 वैल्यूज़ हमने अगेन इंक्रीज़ कर दी. इंक्रीज़ करने के बाद अगेन आप इसका प्रीव्यू देखो, यहाँ पे भी एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है. तो बॉक्स के अंदर का जो पार्ट होगा पिक्चर का वो आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और बाकी का नहीं होगा. ओके पे हमने क्लिक किया. अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए कि क्रॉपिंग दोनों में हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले जब हमने कीप स्केल करके क्रॉपिंग करी तो पिक्चर का साइज़ हमारा शॉर्ट हो गया था, स्मॉल हो गया था. लेकिन इस केस में हमारा पिक्चर का साइज़ उतने का उतना ही रहा, इट हैज़ नॉट गॉट स्मॉल. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज़. क्रॉपिंग दोनों में हो रही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है. ठीक है. अब अगेन हमने क्या किया, इसको अंडू कर दिया. इसके बाद ये जो हमने अभी सीखा वो ये सीखा कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई फ़ाइल सेव है, कोई पिक्चर सेव है तो उसको कैसे लेकर आते हैं. अब इसका एक जो दूसरा मेथड है वो क्या है, राइट साइड में देखिए आपके पास 4 आइकन्स आपको दिख रहे हैं. इसमें जो थर्ड आइकन है दैट इज़ द गैलरी आइकन.
तो आपको क्या करना है, आप गैलरी आइकन पे क्लिक करेंगे. As soon as you click on the gallery icon, you will see a dialog box here which will consist of so many themes. अब इसके अंदर आपकी बहुत सारी themes हैं, names are written, arrows हैं, backgrounds हैं, bullets हैं, computers हैं. जिस भी theme पे आप क्लिक करोगे, नीचे देखिए बॉक्स में उससे रिलेटेड जितने भी आपके पिक्चर्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो रही हैं. आपने बुलेट्स पे किया तो बुलेट्स शो हो गए, एरोज़ पे किया तो एरोज़ शो हो गए. इसके बाद आप क्या करेंगे, सपोज़ यहाँ पे हमने एरोज़ पे लिया, क्लिक किया और यहाँ पे हमें एरोज़ शो हो रहे हैं. हमने एक कोई भी पिक्चर ले लिया एरो से रिलेटेड, राइट क्लिक करना है आपको एंड देन इंसर्ट एंड क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन. इस चीज़ का याद रखना कि डॉक्यूमेंट में अगर आपकी ऑलरेडी एक पिक्चर है और अगर आप इंसर्ट कॉपी करते हैं तो उस केस में जो आपकी प्रीवियस पिक्चर है डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी इंसर्टेड, वो आपकी डिसअपियर हो जाएगी, वो हट जाएगी और न्यू पिक्चर उसका प्लेस ले लेगी, यानी कि न्यू पिक्चर विल रिप्लेस इट. लेकिन इसके लिए अगर आपको सेम पेज पे चाहिए तो आप कर्सर को नीचे ले आना, देन यू कैन इंसर्ट कॉपी. अब देखो जब हमने किया तो पिक्चर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए सेकेंड पेज पे जा रहा है. तो अगर हम इसे फर्स्ट पेज पे चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा सा रीसाइज़ करेंगे, दैट इज़ विल मेक इट साइज़ लिटिल शॉर्ट. अब आप ये देखो कि जब आपने इसका साइज़ छोटा किया तो दोनों पिक्चर्स, एक आपकी चॉकलेट की पिक्चर और एक आपकी एरो पिक्चर जो है वो दोनों सेम पेज पे आपकी सेट हो गई हैं. ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एक पेज पे ही करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है. थर्ड ऑप्शन इज़ पिक्चर को इंसर्ट करने का, गो टू द इंसर्ट मेन्यू, click on the picture option and click on the scan option and then you have to click on select source. ये ऑप्शन आपको तभी यूज़ करना है जब आपके कंप्यूटर से कोई स्कैनर अटैच हो. तो जब आप सेलेक्ट सोर्स पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपके स्कैनर का नेम दिखाएगा और जो भी आप पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट बटन की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हो. एज सुन एज यू सेलेक्ट अ पिक्चर, वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी. तो हमने इसमें 3 मेथड सीखे पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए. वन इज़ फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू, पिक्चर फ्रॉम फाइल, सेकेंड इज़ फ्रॉम द गैलरी ऑप्शन एंड थर्ड इज़ इफ़ यू हैव अ स्कैनर अटैच टू द कंप्यूटर तो आप फाइल को स्कैन करके पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने सीखा रिलेटेड टू द इमेज, हाउ टू इंसर्ट द इमेज. देन हमने मॉडिफाई करना भी सीखा, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं. देन हमने सीखा कि कैसे उसके साइज़ को बिग और स्मॉल कर सकते हैं. देन हमने क्रॉपिंग भी सीखी कि कैसे पिक्चर के किसी पार्ट को आप कट कर सकते हैं. और अगर आपको डिलीट करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे, द पिक्चर विल बी डिलीटेड. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएटिंग द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. आपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा. जैसे हम MS वर्ड में शेप्स इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टैब में जाके शेप्स का ऑप्शन होता है आपका. उसी तरह से ओपन ऑफिस राइटर में अगर आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है, बनाना है, तो आप किस ऑप्शन से करेंगे. इसमें आपका नीचे एक टूल बार रहता है, कभी कभी वो विजिबल होता है एंड इसका एक दूसरा ऑप्शन होता है जहाँ से हम इसे ला सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द व्यू मेन्यू. आप व्यू मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द टूल बार्स ऑप्शन. नीचे दिख रहा है आपको ये टूल बार, इसके अंदर आपके डिफरेंट टूल्स हैं. व्यू मेन्यू पे क्लिक किया, क्लिक ऑन द टूल बार्स ऑप्शन एंड फ्रॉम हेयर क्लिक ऑन ड्राइंग ऑप्शन. ऑलरेडी चेक बना हुआ है इस पर, तो दोबारा क्लिक करोगे तो हट जाएगा, आपका नीचे का टूल बार भी हट जाएगा. तो आपको क्या करना है, अगेन आप जाएंगे व्यू टैब पे, देन क्लिक ऑन टूल बार्स ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन द ड्राइंग. तो अब देखो नीचे अगेन द टूल बार हैज़ कम. समझ में आई इतनी बात. इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके डिफरेंट शेप्स हैं. ये आपका सेलेक्ट टूल है, ये लाइन टूल है, देन आपका रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स टूल है, काफ़ी सारे आपके पास शेप्स हैं. तो इसमें से आप जो भी लेना चाहो वो आप ले सकते हो. ठीक है, तो इसके बाद सपोज़ आप क्या चाहते हो, यहाँ से हमने क्या किया, एक स्माइली ये कॉल आउट लिया. तो कॉल आउट बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसी शेप्स बना लेते हैं और हम उन्हें ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो कुछ बोल रहे हैं, तो उस केस में आप कॉल आउट लेके उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करा सकते हो. इसके बाद हमने यहाँ पे एक शेप ली, सपोज़ हमने यहाँ पे एक स्माइली बनाया. तो अब आप देखो जब भी आप कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट लेते हो, बेसिकली इन शेप्स को हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं. यहाँ पे ऊपर देखिए जो आपका ये फॉर्मेटिंग टूल बार आता था जहाँ पे, वहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो गए. जब आप
किसी पिक्चर को कंप्यूटर से इंसर्ट करते हैं या गैलरी से इंसर्ट करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ उसकी वहाँ पे सेम नहीं होती हैं, दे आर डिफरेंट। और जब आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर डिफरेंट। अब आप देखो इसके अराउंड क्या है, आपके स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हो। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो प्रॉपर्टीज़ में है आपका एरो एंड्स, कि आपको एरो किस तरह का चाहिए। चेंज किया, देखो हमने इसके जो स्माइल का जो एरो है वहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में एक एरो बना हुआ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने कोई दूसरा लिया जिसमें ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, तो देखो ये चेंजेस हो गए आपके। तो दिस इज़ द वे यू कैन चेंज द एरो एंड्स। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज़ हाउ डू यू वांट द आउटलाइन ऑफ द पिक्चर। डैश्ड हो सकती है, डॉटेड हो सकती है, डॉटेड डैश्ड हो सकती है, देख रहे हो आप चेंजेस इसमें। देन नेक्स्ट जो है आपका दैट इज़ योर थिकनेस ऑफ द आउटलाइन। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 0.00 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज़ करेंगे तो उतना आपका थिक होता जाएगा, और जितनी वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे उतना आपका थिन होता जाएगा। दैन यहाँ जो ग्रे लिखा हुआ है ये आपका कलर है आउटलाइन का। अभी हमने चूज़ किया येलो कलर, तो आप देख रहे हो कि आउटलाइन का कलर हैज़ चेंज टू येलो, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा कलर है जिसमें पेंट बकेट बनी हुई है, ये आपका फिल कलर है, लेकिन इसके भी टाइप्स हैं। नन अगर करते हो इट मीन्स वी डोंट वांट एनी कलर, ओनली आउटलाइन कलर विल बी देयर इफ़ अप्लाइड। एंड अगर आप चूज़ करते हो कलर ऑप्शन, तो जो भी आप राइट साइड का जो दूसरा बॉक्स है उसमें से कलर लोगे, जैसे हमने यहाँ पिंक लिया तो दैट कलर विल बी अप्लाइड। और इसमें एक और ऑप्शन है आपका ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट बेसिकली क्या रहता है, ग्रेडियंट आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स। तो जब आप ग्रेडियंट लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग राइट साइड वाले बॉक्स में आपको पिक्चर्स कलर्स शो करता है। तो यहाँ से हमने पहले ये वाला लिया ब्लू ग्रेडियंट, हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पर्पल ले लिया, तो आप देख रहे हो एक जगह पे बीच में थोड़ा सा लाइट है और आउटसाइड थोड़ा सा डार्क है। ये आपका ग्रेडियंट ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए कुछ शेप्स के साइड में एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है जिस भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साइड में एरो है उसके पास फर्दर कुछ और शेप्स हैं। वो जैसे हमने एरो पे क्लिक किया तो एरो के डिफरेंट टाइप्स दिखा रहा है। इसी तरह से कोई और शेप हो सकती है, जैसे स्माइली है, तो इसमें जो शेप्स हैं वो स्माइली से इतनी रिलेटेड तो नहीं है, बट इट हैज़ मोर शेप्स। तो जिसमें भी एरो है आपका इट मीन्स इट हैज़ मोर शेप्स, और जिसमें एरो नहीं है वो सिंपल आप एक ही जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ हमने इलिप्स लिया तो उसमें एरो नहीं लगा हुआ था साइड में, तो सिंपली क्या हुआ, क्लिक करोगे और आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट पे होल्ड करके ड्रैग करोगे तो वो आपकी पिक्चर वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ है आपकी फ़ॉन्ट वर्क गैलरी। देखो फ़ॉन्ट वर्क गैलरी क्या होता है, आपने MS वर्ड में यूज़ किया है वर्ड आर्ट, उसी तरह से इसमें आपका होता है फ़ॉन्ट वर्क। डिफरेंट ब्यूटीफुल स्टाइल्स टू राइट विच मेक योर डॉक्यूमेंट लुक इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। हमने यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट वर्क चूज़ किया, क्लिक ऑन ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ब्लैक कलर में फ़ॉन्ट वर्क आ रहा है, लेकिन जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे जो येलो कलर का फ़ॉन्ट वर्क लिखा हुआ है ना, उसके साइड में आपके क्या आएंगे, स्क्वायर बॉक्सेस आएंगे। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है, वो बॉक्सेस हट जाएंगे और ये ब्लैक कलर का आपका लिखा हुआ आ जाएगा। देन आपका कर्सर भी आ जाएगा, कर्सर से आपको क्या करना है, बैक स्पेस करते जाना है, और जो भी आप यहाँ पे लिखवाना चाहते हो या लिखना चाहते हो वो आपको टाइप करना है कीबोर्ड से। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, हेलो, और बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दो विद द माउस। अब देखो फ़ॉन्ट वर्क हट गया और क्या आ गया, हेलो। इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। इसी तरह से ये चीज़ आप भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका है फ्रॉम फाइल। अब ये फ्रॉम फाइल ऑप्शन हमने पहले भी पढ़ा था कि आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल सेव है तो वो आपकी क्या करेगी, जो पहले आपकी पिक्चर्स हैं उनको रिप्लेस कर देगी और न्यू पिक्चर वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। एक टेक्स्ट का ऑप्शन भी है आपका इसमें, अगर आपको फ़ॉन्ट वर्क नहीं यूज़ करना तो आप टेक्स्ट लेके ऑप्शन माउस से क्लिक करोगे और ड्रैग कर दोगे थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इंसर्ट हो जाएगा, कर्सर आ जाएगा, आप वहाँ पे जो भी टाइप करोगे वो टाइप होता जाएगा। सेलेक्ट करके आप इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो ये वर्क हो गया आपका टेक्स्ट ऑप्शन का, ठीक है। इसके बाद हमारा एक ऑप्शन इसमें और आता है कि ये आपकी पिक्चर है, आपके पास थोड़ा सा रोटेशन करनी है इसके अंदर। अभी हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शंस, दैट इज़ रीसाइज एंड ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। कैसे हम पिक्चर को रीसाइज करते हैं ये तो हमने सीख लिया।
ग्रुपिंग कैसे करनी है, 2 पिक्चर्स को या 2 से ज़्यादा पिक्चर्स को कैसे साथ मूव कराना है वो हम सीखेंगे। एंड पोजीशन द इमेज इन अ टेक्स्ट, इमेज के साथ अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसकी कैसे पोजीशनिंग होगी। इसके अंदर आपका एक टॉपिक है रोटेशन का, तो यहाँ पे आपको साइड में एक रोटेशन हैंडल दिख रहा है, इट्स नेम इज़ रोटेट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपकी ये पिक्चर सेलेक्टेड है, आपने रोटेट ऑप्शन पे क्लिक किया, आपके जो स्क्वायर बॉक्सेस थे वो सर्कल शेप में रेड कलर के चेंज हो गए। किसी भी बॉक्स पे आप जाएंगे और वहाँ पे अब अपना माउस पॉइंटर जब रखोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रोटेशन हैंडल में चेंज हो जाएगा। ये सर्कल सी आपको शेप दिख रही है, ये एरो वाली, जब आप इसको माउस को क्लिक करके और मूव करोगे तो उस केस में आपका जो ये है पिक्चर है वो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट हो गया रोटेशन का। ठीक है, इसके बाद बेसिकली हम ये सीखेंगे कि कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं। अब ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप ये चाहते हो कि अगर मैं एक पिक्चर को मूव करूं तो दूसरी भी साथ में मूव हो। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ 2 को करो, आप 2 से ज़्यादा को भी कर सकते हो। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि इफ़ आई मूव स्माइली देन माई रॉम्बस शुड ऑल्सो मूव, एंड इफ आई मूव द रॉम्बस देन माई स्माइली शुड ऑल्सो मूव। इन दैट केस आप क्या करेंगे, दोनों को ग्रुप करेंगे। अब ग्रुप कैसे करते हैं, एक होती है शॉर्टकट की Ctrl+G, जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप, और एक होती है आपकी कीबोर्ड की शिफ्ट की, जिससे हम पहले दोनों को सिलेक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके रखना है, देन आपने प्रेस करना है शिफ्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड, विच की, शिफ्ट की। देन आप सेकंड पिक्चर को सेलेक्ट करोगे, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट की को प्रेस किया, सेकंड पिक्चर को या सेकंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। शिफ्ट की हेल्प से दोनों आपके जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक साथ क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसको आप ट्राई करना, एक बार में हो सकता है कि प्रॉपरली सेलेक्ट ना हो, लेकिन आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखना तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दोनों सेलेक्ट हो गए। अब आपको या तो आप शॉर्टकट की यूज़ करो Ctrl+G, ग्रुप वाला G, या फिर आप राइट क्लिक करिए, गो टू द ग्रुप ऑप्शन एंड क्लिक ऑन अगेन ग्रुप ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे ये दोनों पिक्चर्स, ये दोनों ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, ग्रुप हो गए। अब अगर आप इसमें से किसी भी एक को मूव करोगे ना तो आपके दोनों मूव करेंगे। अब सपोज आपने यहाँ पे स्माइली को मूव किया तो आप देख रहे हो रॉम्बस भी ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं रॉम्बस को नीचे लेकर आऊँ तो आप देखो कि जो मेरा स्माइली है वो भी नीचे आ रहा है। क्लियर दिस थिंग, दोनों मूव हो रहे हैं, तो ये होती है हमारी ग्रुपिंग। अब मान लीजिए मैंने जो ग्रुपिंग का काम था वो कर लिया, अब मुझे वापस से ये एलिमेंट्स वैसे ही चाहिए, दैट इज़ इंडिविजुअल चाहिए। आई वॉन्ट कि स्माइली को मूव करूँ तो ओनली स्माइली मूव करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक अगेन, गो टू द ग्रुप ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द अनग्रुप ऑप्शन। ग्रुप करने के लिए ग्रुप ऑप्शन, अनग्रुप करने के लिए अनग्रुप ऑप्शन। तो इसके बाद हमने क्या किया, अब देखो आप जब आप स्माइली को मूव करोगे तो अब आपका सिर्फ स्माइली मूव होगा, और जब आप रॉम्बस को मूव करोगे तो आपका सिर्फ रॉम्बस मूव होगा। तो अनग्रुपिंग में आपका क्या होगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे, और ग्रुपिंग में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। शॉर्टकट की इज़ Ctrl+G, याद रखनी है आपको शॉर्टकट की। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बेसिकली नेक्स्ट इज़ योर पोजिशनिंग द इमेज विद द टेक्स्ट। अब हमने क्या किया, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को हमने डिलीट कर दिया और दोबारा से हम अपनी चॉकलेट की पिक्चर को ले आए अपने डॉक्यूमेंट में, और हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, हेलो स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग इंसर्टिंग इमेजेस। इसके बाद मैंने कुछ और टेक्स्ट लिखा, लेकिन वो टेक्स्ट देखो कहाँ, साइड में नहीं आया, चॉकलेट के साइड में, लेफ़्ट राइट साइड में नहीं आया, वो बिल्कुल पिक्चर के नीचे चला गया। तो ये ऑप्शन कौन सा है आपका, नो रैप। अच्छा एक चीज़ और देखो, जब आपकी ये जो पिक्चर है ये सेलेक्टेड नहीं है तो आपको नीचे फॉर्मेट, ऊपर जो फॉर्मेटिंग बार है उसमें आपको फ़ॉन्ट दिख रहा होगा, साइज़ दिख रहा है, BIU दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने पिक्चर को सेलेक्ट किया आपका जो बार के ऑप्शन से वो चेंज हो गए। देखो पिक्चर को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम ये वाले बार को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये आपके स्टाइल्स हैं जो हमने कल पढ़े थे, और ये आपका है रैप ऑफ। तो रैप ऑफ बेसिकली क्या कर रहा है कि जो टेक्स्ट है, मैटर जो है आपका, वो पिक्चर के अबव या बिलो आएगा, रैपिंग नहीं होगी, मतलब वो उसके साथ नहीं आएगा। सेकंड है आपका पेज रैप। पेज रैप में बेसिकली जो आपका कंटेंट है वो
पिक्चर के चारों तरफ आता है। इस केस में नहीं आ पा रहा क्योंकि हमने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो हमने इसको चेंज किया, दोबारा से स्मॉल में लिखा और पिक्चर के साइज़ को थोड़ा सा स्मॉल किया। तो आप इसको चेक करके देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो पेज रैप ऑप्शन में क्या हो रहा है, पिक्चर के अबव, बिलो, लेफ़्ट, राइट, चारों साइड उसके अराउंड टेक्स्ट आ रही है। ठीक है, अब हम इसको चाहें तो दोबारा से रैप ऑफ करके देख सकते हैं। इसी को अगर हम रैप ऑफ करेंगे तो उस केस में देखना आपका क्या होगा कि जो टेक्स्ट आ रही है वो सिर्फ अबव और बिलो आएगी। फिर दोबारा से अगर हम पेज रैप करते हैं तो उस केस में आपकी टेक्स्ट चारों तरफ आ गई। ठीक है, क्लियर दिस थिंग। इसके बाद आपका है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ रैप थ्रू। तो इस केस में क्या रहेगा, द पिक्चर विल बी अबव एंड द टेक्स्ट विल बी बिलो। तो ये आपका होता है रैप थ्रू ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ और ऑप्शंस हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। दिस इज़ अलाइन लेफ़्ट, जैसे हम टेक्स्ट को करते हैं वैसे पिक्चर लेफ़्ट अलाइन हो गई, सेंटर हो गई, राइट हो गई। देन हमारा है यहाँ पे बेसिकली लाइक ये है हमारा टॉप में लेके जाना चाहते हैं या सेंटर में लेके जाना चाहते हैं या बॉटम में लेके जाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन मेक द चेंजेस। एक इसमें ऑप्शन है आपका बॉर्डर्स का, जिसमें आपने जब आपने क्रॉप ऑप्शन पढ़ा था वहाँ पे भी आपका बॉर्डर्स का टैब था, वहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। अब बॉर्डर भी आपके डिफरेंट टाइप्स के आपको दिख रहे हैं। हमने यहाँ पे 4 साइड बॉर्डर ले लिया और बॉर्डर के स्टाइल भी हैं डिफरेंट डिफरेंट, थिक है, थिन है, डबल साइडेड बॉर्डर है। तो हमने यहाँ पर डबल साइडेड बॉर्डर लिया और हमने पिक्चर को थोड़ा सा नीचे ले लिया ताकि इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू। ठीक है, अब इसके अंदर इसके कलर्स होते हैं, बॉर्डर का कलर आपको कैसा चाहिए, तो जो आप कलर चूज़ करोगे वो कलर हो गया। इसी तरह से अंदर का कलर आपको बैकग्राउंड का कलर कैसा चाहिए वो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने रेड लिया तो इतना विजिबल नहीं हो रहा, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये लिया तो ये भी इतना नहीं दिख रहा, लाइट है थोड़ा सा। अब फिर हम इसको दोबारा चेंज करते हैं। अब हमने लिया येलो कलर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अंदर थोड़ा थोड़ा आपको येलो येलो दिख रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द वे वी कैन मेक चेंजेस इन द पिक्चर। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे पिक्चर को इंसर्ट करना है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है और कैसे आप उसके अंदर क्रॉप कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, डिफरेंट थिंग्स वी हैव लर्नड अबाउट इंसर्टिंग द इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। सो दिस ऑल हैज़ टू बी डन प्रैक्टिकली बाय यू। जितना आप इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके देखोगे इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और उतना आप उस चीज़ में स्किल्ड हो पाओगे। तो बेटर है कि आप इसको एक बार अपने हाथ से करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी अगेन। And all the topics related to images we have covered in this one.